Hello students, welcome to the maths class. In the previous class we were discussing the addition rules regarding that how we add two rational numbers together when their denominators are distinct. Okay, let us discuss one more question related to it. So see here, this is a question in which you are provided two rational numbers and you have been asked to add them together. This is one rational number and this is another rational number. Now first of all, see here, both of the rational numbers have distinct denominator. That means दोनों rational numbers के denominators अलग-अलग हैं. And the first thing you have to check while adding two rational numbers together that their denominator should be positive. So in this rational number denominator is positive, but in this rational number denominator is negative. So first of all, make this denominator as positive denominator. Okay, 2/5 में denominator already positive है, so we will not touch this. Now 3/-4 में अगर हम -1 से न्यूमरेटर में और -1 से ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 3 into -1, that is 3 into 1 is 3 into 1 will give you 3 and minus sign, so here also minus sign. Now 4 into 1 will give you 4 and minus into minus will give you plus. So देखिए आप डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया ना, numerator is negative but there is no problem with that. Your denominator should be positive. So -3/4 is the required rational number. Now in both of them denominator is positive, so we may proceed further. Now in the next step what we do, we take out the LCM of the denominators. So LCM of 5 and 4 is 20. In the next step what we do, we take out the equivalent rational numbers such that all of them have common denominator, that is their LCM. हम equivalent rational numbers find करते हैं such that कि जो भी rational numbers हमें obtain हो उनकी common denominator हो, मतलब दोनों की denominator same हो और वो क्या हो, जो हमें LCM value मिल गई है. ओके, सो आप बताइए 2/5 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डिनोमिनेटर में ये एलसीएम वैल्यू 20 मिल जाए. सो आई फाउंड कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करूँ, सो 5 4 से 20, और हमें पता है जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 into 4/5 into 4. अब सेकेंड रेशनल नंबर हमारा -3/4 है. हमें पता है हम 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वील गेट 20 एज द डिनोमिनेटर. सो 4 into 5 और सेम 5 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3 into 5. नाउ द रेशनल नंबर्स वी गॉट इज 8/20 प्लस -15/20. नाउ वी हैव टू ऐड देम टुगेदर. So you can see here denominators are same. So take the common denominator as 20. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, हमें यही करना था, सो हम डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे विच इज कॉमन टू बोथ द न्यूमिनेटर्स. और प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस, सो 8 प्लस इंटू माइनस -15. एंड इफ यू सब्सट्रैक्ट 8 and 15 टुगेदर यू विल गेट -7. कैसे? 8 के पास प्लस साइन है, 15 के पास माइनस साइन है, सो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगता है. 15 बड़ा है, 15 के पास माइनस साइन है, सो दैट मीन्स -7/20 is your final answer. Now I hope you are clear with the concept of addition of rational numbers. Okay, so moving on to second operation, that is subtraction on rational numbers. Okay, how do we perform subtraction of rational numbers? See here, if P/Q and R/S are two rational numbers, then subtraction of R/S from P/Q is written as P/Q minus R/S. आपसे कहा जा रहा है if you are provided with two rational numbers, say P/Q और R/S, दो rational numbers हैं और आपसे कहा जा रहा है आप इन्हें सब्सट्रैक्ट करिए, तो आप ऑब्वियसली सेकंड वाले को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो हम क्या करेंगे, जब हम R/S को P/Q में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, R/S को P/Q में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, P/Q माइनस R/S. और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि R/S P/Q में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है. ओके, अब देखिए इससे हमें कुछ और कंक्लूजन्स मिलते हैं, हम थोड़ा और वेज में इसको समझ सकते हैं. सी हियर इट मीन्स एडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ R/S टू P/Q. You all are very much aware of the concept of additive inverse. What are additive inverse? In case you don't know, I'm telling you, when you have to take out the additive inverse of any number, you just take opposite of that. Okay, so according to them, इस पूरे expression का मतलब है इनकी, जैसा इसमें कहा गया है कि आप R/S का एडिटिव इनवर्स P/Q में एड अप कर दे रहे हैं. तो सबसे पहले हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि R/S का एडिटिव इनवर्स क्या होगा. R/S की ही बात क्यों हुई,
क्योंकि जिसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसकी बात होती है, और r अपॉन s को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है ना किसमें, p अपॉन q में से। सो r अपॉन s का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, additive inverse of r upon s is minus r upon s. I said when you have to take out the additive inverse, just write opposite of that. So plus r upon s था तो ये हो जाएगा minus r upon s ना, plus r upon s की वैल्यू opposite वैल्यू क्या हो जाएगी, minus r upon s. Okay, and according to this sentence they are saying you just have to add this additive inverse value to p upon q. So p upon q में plus कर देंगे अगर इस additive inverse की वैल्यू, so plus into minus will give you minus, so p upon q minus r upon s. So finally आपको फिर से यही ऑप्टेन होगा. Okay, so basically what they are saying is जब भी आपको रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो गिवन रेशनल नंबर में जो पहला रेशनल नंबर उसमें से दूसरा रेशनल नंबर इस अकॉर्डिंग हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. Now let us discuss a question related to subtraction. This is a question, minus 7 upon 24 minus within bracket minus 5 upon 36. That means you have to subtract this minus 5 upon 36 from minus 7 upon 24. So just now which I told you the concept of subtraction. अगर आपको additive inverse का जो मैंने concept बोला वो complicated लग रहा है, so just don't focus on it. You just simply use the basic rules of subtraction of rational numbers and using them solve the questions. Don't focus on that concept if you're finding it difficult. So देखिए मैं simply basic rules use किया subtraction के and I'm going to solve this question. Minus 7 upon 24. Now this minus and again there is minus, so minus into minus will give you plus. Plus 5 upon 36. Now check here, all the denominators are positive. Yes, they are positive. So you may proceed further. Now what is the next step? The next step is that take out the LCM of the denominators. So LCM of 24 and 36 will be 72. Okay, now form the equivalent rational numbers such that they have LCM as their common denominator. अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बनाइए सच दैट कि सबका डिनोमिनेटर क्या हो, जो आपकी एलसीएम वैल्यू है, दैट इज 72 हो. So minus 7 upon 24 में मैंने नोटिस किया कि if I multiply them by 3 both the numerator and denominator, I'll get the denominator value as 72. So minus 7 into 3, 7 3 जा 21, that is minus 21 because here is minus sign, upon 24 into 3 will give you 72. Plus this is 5 upon 36. Now I found that when I multiply 36 with 2, I'll get 72 as a denominator. So multiply the numerator also with 2. So 5 2 ja 10 upon 72. Now the denominators are same. Write it as a common denominator and write the numerators along with their signs. Be careful about the signs. So minus 21 plus 10. Now denominator is common, that is 72. Now tell me minus plus means माइनस. जब माइनस प्लस का साइन रहता है दो ऑपोजिट साइंस रहते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और हम साइन कौन सा लगाते हैं, ग्रेटर वैल्यू का. सो ग्रेटर वैल्यू क्या है, 21 की 10, 21 और 21 के पास माइनस साइन है. सो फाइनली हम माइनस करेंगे, 21 में से 10 माइनस होगा तो क्या बचेगा 11, और ग्रेटर वैल्यू हमारी 21 है उसके पास माइनस साइन है. सो माइनस 11 अपॉन 72 इज योर आंसर. Now let us discuss one word problem also related to this concept of subtraction. This is basically example number 6 from your book. What should be subtracted from minus 9 upon 20 to get minus 1 upon 5? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको माइनस 9 अपॉन 20 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए कि आपको माइनस 1 अपॉन 5 मिल जाए. सो दैट मीन्स माइनस 9 अपॉन 20 में से क्या सब्सट्रैक्ट होगा ये अननोन है और यही आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड बी एक्स. जो हमें सब्सट्रैक्ट करना है माइनस 9 अपॉन 20 में से उसको हम एक्स मान लेते हैं बिकॉज इट्स अननोन वैल्यू. सो इसको आप एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल लेट कर लीजिए. फाइन. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि माइनस 9 अपॉन 20 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें. ऑब्वियसली ये जो अननोन नंबर है इसको हमने क्या लेट किया, एक्स. सो क्या सब्सट्रैक्ट करें, इसलिए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कि हमें माइनस 1 अपॉन 5 आंसर में मिल जाए. सो इस अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली. नाउ डू वन थिंग, पुट द वेरिएबल्स वन साइड एंड द कॉन्स्टेंट्स अदर साइड. एक साइड आप वेरिएबल्स लिख लीजिए और एक साइड आप सारे नंबर्स को ट्रांसपोज कर दीजिए. सो मैंने क्या किया, मैंने x को एक साइड ट्रांसपोज कर दिया और सारे नंबर्स एक साइड लिख लिए. तो साइंस भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. सो x को अगर इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस एक्स था यहाँ पे, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा. ओके, इज इक्वल्स टू
अब -1/5 देखो, -9/20 तो यही है, -1/5 को -9/20 के पास लाएंगे ना, तो ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/5 प्लस। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि जब x को इधर भेजा तो x इधर लिखना था और इक्वल टू करके ऐसे लिखना था कुछ ना, कुछ ऐसा लिखना चाहिए था ना, मतलब तो वही हुआ, मैंने x ऐसे, साइंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए x पॉजिटिव है, 1/5 पॉजिटिव है, -9/20 नेगेटिव है, सो मैंने इस तरह से लिख लिया है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, बस आपके साइंस नहीं गलत होने चाहिए। ओके, नाउ सॉल्व इट फॉर द, टेक आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, सो 5 और 20 का एलसीएम क्या आएगा 20। नाउ फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स टेकिंग डिनोमिनेटर एज कॉमन एंड मेक द डिनोमिनेटर्स 20। कॉमन डिनोमिनेटर हमें बनाना है, और वो कॉमन डिनोमिनेटर कौन सा होना चाहिए, जो हमारी एलसीएम वैल्यू आई है। एलसीएम वैल्यू क्या आई है 20 आई है। सो आई फाउंड आउट दैट इन 1/5 if I multiply the denominator with 4 in I'll get 20 in the denominator, so 5 into 4, और उसी वैल्यू से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 9/20 में, अब 20 इसमें ऑलरेडी है, सो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने तो हमें नंबर इटसेल्फ मिल जाता है। अगर आप चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करके भी मत दिखाइए, बिकॉज इसमें तो ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर 20 है। ओके, so x is equals to 4/20 minus 9/20. Now you can see this is a common denominator 20, so take it common, write the numerators 4 minus 9, और 9 में से 4 देखिए प्लस, ये 4 के पास प्लस साइन है और 9 के पास माइनस, तो प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस। सो 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 बचेगा, और ग्रेटर वैल्यू 9 है, 9 के पास नेगेटिव साइन है, सो फाइनल वैल्यू में नेगेटिव साइन अपॉन 20। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, सो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, -1/4। दैट मीन्स कि -9/20 में अगर -9/20 में से अगर -1/4 सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, -1/5। Okay, like this there are so many word problems in your exercise also, but you have to solve each and every one of them. Practice as many questions as you can. If you face problem in any of them, ask me, I'll clear it out. So that's all for today. Thank you.